Good morning, student. Today we are going to attend the economic class. In the last video, we have started the chapter number 10 of part A. The name of the chapter is Measures of Central Tendency, Median and Mode. Recap of the last video. We have done in the last video we have done the median chapter. Now we are going to do the mode chapter. Which chapter we are going to start now? Mode. टॉपिक कवर्ड इन दिस वीडियो कौन कौन से टॉपिक हमने करने हैं इस चैप्टर में दैट इज़ इंडिविजुअल सीरीज़ डिस्क्रीट सीरीज़ नेक्स्ट इज़ कॉन्टिन्यूस सीरीज़ लेस देन मोर देन मिड वैल्यू इंक्लूसिव सीरीज़ अनइक्वल क्लास इंटरवल and last topic is open end series. After this our chapter is going to be complete. Which chapter we are going to complete? That is chapter number 10. Now we are going to start our 10th chapter, that is now mode. What do you mean by mode? Mode का मतलब क्या होता है? It is the value which occur most frequently in the series. Most frequently मतलब बार बार repeat होती है सीरीज में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? Mode. Now we can calculate the mode with the help of three series. First is individual series, second is discrete series, and last is continuous series. In the individual series only one method is there, that is inspection method. In discrete series there are two methods, that is inspection method and grouping method. In the continuous series also there is two methods, that is inspection and grouping. So with these three series you are going to calculate the mode. So students, we are going to start our first series, that is individual series, and in under the individual series we are going to do which method? Inspection method. In which method? Inspection method. Now like every in mean and median you always given x. इंटीजर सीरीज में आपको क्या दिया होता है? आपको x दिया होगा. द फर्स्ट स्टेप इज़ टू अरेंज द सीरीज. आपने उस x को अरेंज कर लेना है, चाहे असेंडिंग में चाहे डिसेंडिंग में. आई हैव अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. आफ्टर अरेंजिंग दैट you arranging the x in ascending order, you have to see that which number is repeating more. Like 22 is repeating 1 2 3 4, and so the z is equal to 22. Why 22 is answer? Because 22 is repeating 4 times and no other number is repeating 4 times, so z is equal to 24. In individual series, in inspection method, first of all you have to arrange in ascending order. After arranging in ascending order, you have to see which number is repeating more time, which number is repeating more time, and that is your answer. That is z 22 is repeating more 4 times, so z is equal to 22. Next series is discrete series. Which series? Discrete series. In the discrete series we are going to start from the inspection method. In the discrete series x and f is given to you. आपको x भी दी होगी, आपको क्या दी होगी? f भी दी होगी. आपने f में से देख लेना कौन सी हाईएस्ट टर्म है. लाइक इन f हाईएस्ट टर्म कौन सी आपकी 10 है. आपने 10 के सामने x कितना दिया होगा? आपको 130. सो z इज इक्वल टू 130. इन द डिस्क्रीट सीरीज इंस्पेक्शन मेथड में आपने क्या देखना है? आपको एक्स एंड एफ तो दी होगी, आपने एफ में हाईएस्ट टर्म को देख, कौन सी टर्म हाईएस्ट है? दैट इज 10. 10 के सामने आपने एक्स में देखना है क्या है एक्स 10 के सामने, दैट इज 130. जेड इज इक्वल टू 130. इन इंडिविजुअल सीरीज आपने कौन सी टर्म कितनी बार रिपीट हो रही है आपने वो देख लेना है. अगर 22 4 टाइम रिपीट, यहाँ पे 4 टाइम रिपीट करिए और कोई टर्म 4 से ज़्यादा जा रही है, अगर नहीं जा रही तो 22 आपका आंसर है. इन द डिस्क्रीट सीरीज आपने एफ में देखना कौन सी हाईएस्ट टर्म है, उसके सामने जो आपका एक्स है वो आपका क्या होगा? आंसर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकेंड मैथड ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, दैट इज ग्रुपिंग मैथड. कौन सा मेथड है? ग्रुपिंग मेथड. इसको ग्रुपिंग, इन द ग्रुपिंग मेथड यू हैव टू ड्रॉ टू टेबल. आपने क्या बनाने हैं? 2 टेबल बनाने. एक तो ग्रुपिंग टेबल, दूसरा आपने एनालाइज टेबल बनाना है. फर्स्ट इज ग्रुपिंग टेबल. नाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस ग्रुपिंग. दिस इज योर ग्रुपिंग टेबल. इन दिस एक्स एंड एफ इज गिवन टू यू. आपको क्या दी होगी? एक्स भी दी होगी, आपको एफ भी दी होगी. आपने 6 कॉलम बना लेने. कितने कॉलम बनाने हैं? 6. एफ़ को अपने फर्स्ट कॉलम बनाना है. एफ़ को कौन सा कॉलम बनाना है? आपने फर्स्ट. फिर उसके बाद आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स.
आपने 6 ऐसे कॉलम बना लेने हैं। उसके बाद आपने एफ में से देख लेना है कौन सी हाईएस्ट टर्म है। आपकी हाईएस्ट टर्म कौन सी है? 10। आपने 10 को सर्कल कर लेना है, 10 को सर्कल कर लेना है। उसके बाद आपने सेकंड कॉलम को बनाना है। सेकंड कॉलम को बनाने के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट आइटम प्लस सेकंड आइटम, फर्स्ट 1 + 2, क्या करना है आपने? 1 + 2। आपने 1 + 2 किस में करना है? आपने हमेशा एफ में करना है। 1 + 2 किस में देखना है आपने? एफ में से। 1 + 2 मतलब 2 + 4 दैट इज 6, 8 + 10 दैट इज 18, 5 + 4 दैट इज 9। 1 + 2 आपने सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम कैसे बनाया? 1 + 2, 1 + 2 किसका लिया आपने? एफ में से। फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में आपने क्या करना है? 2 + 3, 2 + 3। अब आपने फर्स्ट को छोड़ देना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? 2 + 3, 4 + 8 दैट इज 12। नेक्स्ट इज 10 + 5 दैट इज 15। अब आपका एक नीचे से छूट जाएगा और एक ऊपर से छूट जाएगा। क्यों छूटा? क्योंकि आपने 2 + 3 लिया है। अब फोर्थ कॉलम में क्या लेना है आपने? 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, like 2 + 4 + 8, 10 + 5 + 4. This is your fourth column. Now you are going to do which column? Fifth column. Fifth column में आपने क्या लेना है? 2 2 + 3 + 4, 2 + 3 2 + 3 + 4 क्या करोगे आप? 4 + 8 + 10, 4 + 8 + 10 लेने के बाद कितना आंसर आ गया आपका? 22। अब 5 और 4 आगे नहीं है तो आपके नीचे भी 2 बच गए हैं और ऊपर वाला भी 1 बच गया। नेक्स्ट इज 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5 क्या लोगे आप? 8 + 10 + 5, कौन सा लोगे आप? 8 + 10 + 5 दैट इज 23। सो स्टूडेंट, दिस इज योर ग्रुपिंग टेबल। हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट? आपने एक्स दी होगी, आपको एफ दी होगी। आपने एफ से क्या बना लेने? आपने 6 कॉलम बना लेने। कितने कॉलम बना लेने हैं? 6 कॉलम। एफ को आपने फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब आपने एफ में से हाईएस्ट टर्म को मार्क कर लिया दैट इज 10। सेकंड कॉलम में आपने क्या लेना है? 1 + 2, थर्ड कॉलम में 2 + 3, फोर्थ कॉलम में 1 + 2 + 3, फिफ्थ कॉलम में 2 + 3 + 4, सिक्स कॉलम में 3 + 4 + 5। आपने ये सारे प्लस करने कैसे, किस में देखने? आपने 1 + 2 हमेशा एफ में से देखना है। किस में देखना है आपने? एफ में से। आपका ये ग्रुपिंग टेबल बनने के बाद आपने फर्स्ट कॉलम में आपने 10 को मार्क कर लिया था। सेकंड में आप किसको कॉलम मार्क करोगे? 18 को। नेक्स्ट 2 + 3 में किसको मार्क करोगे आप? 15 को। नेक्स्ट 1 + 2 + 3 में किसको मार्क करोगे? 19 को। 2 + 3 + 4 में तो है ही एक है, तो आप इसी को ही सर्कल कर दोगे। आपने इसी को ही सर्कल कर देना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एनालाइज। फर्स्ट टेबल इज कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एनालाइजिंग टेबल। बट यू आर गोइंग टू डू इन एनालाइज टेबल। आपने कॉलम कितने बनाए थे? 6, 1 2 3 4 5 6। नीचे आपने टोटल कर देना है और इधर आपने क्या लिखना है? 10 लिखना है, एक्स लिखनी है। इधर आपने क्या लिख दिया? आपकी एक्स लिख दी। क्या लिखी आपने? एक्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है? अब इस क्वेश्चन में आपने फर्स्ट कॉलम पे जाना है। सबसे पहले किस पे जाना है? आपने फर्स्ट कॉलम पे जाना है। फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट टर्म क्या थी? आपकी 10 थी। 10 के सामने आपका एक्स कितना आया? 130। तो आपने 130 के ऊपर मार्क कर देना है। आपने किसके ऊपर मार्क कर देना है? 130 के ऊपर। नेक्स्ट सेकंड कॉलम है। अब सेकंड कॉलम में आपके पास क्या था? हाईएस्ट टर्म क्या है? 18। क्या है आपकी? 18। आप 18 देखो किसको प्लस करके आए? 8 + 10, 8 + 10, 8 + 10 के सामने क्या है आपका? 120 एंड 130। क्या है आपका? 120 एंड 130। तो आपने किसको टिक कर देना? 120 और 130 को। इसी तरह आपने अब थर्ड कॉलम पे जाना है। थर्ड कॉलम पे आपके पास आंसर कितना आया आपका? 15। 15 किसको प्लस करके आया? 10 + 5 को। 10 + 5 ये रहा आपका। एफ में कहा है 10 + 5 ये। 10 + 5 के सामने क्या? 130 और 140। तो आपने 130 और 140 को टिक कर देना है। इसी तरह आपने अपने 6 कॉलम तक कर लेना है। करना क्या है? जिसको आपने सर्कल किया था ग्रुपिंग टेबल में, वो उसको जिसको आपने सर्कल किया था उस नंबर को आपने देखना है कि कौन से नंबर को प्लस करके वो नंबर आया। सपोज 15 था, 15 किसको प्लस करके आया? 10 + 5। 10 + 5 आपने एफ में देखना है। एफ में 10 + 5 के सामने एक्स कितनी है? 130 और 140। तो आपने उसके ऊपर टिक करते जाना है।
लास्ट स्टेप पे यू आर गोइंग टू टोटल इट। अब आपने क्या करना है, टोटल करना है। 100 के नीचे कोई भी टिक नहीं था, 110 के आगे 1 था, 120 के आगे 3 थे, 130 के आगे 6 था, 140 के आगे क्या है आपका 3, और 150 के आगे आपका क्या है 1। सो आंसर क्या है आपका, आपका z क्या आएगा 130। मोड का साइन क्या है आपका z, तो 6 के ऊपर देखो कितना आ रहा है आपका 130, सो आंसर इज 130। सो स्टूडेंट्स, in the discrete series, in the grouping method you are going to make two table. One is grouping table and second is analyze table. In the analyze table you are going to write x. आपने x लिखनी है, आपने f नहीं लिखनी है। आपने x लिख के f में देखना है कि कैसे वो कौन सा नंबर हाईएस्ट है और किसको प्लस करके आया है। दिस इज योर डिस्क्रीट सीरीज ग्रुपिंग मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट सीरीज दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। अभी तक आपने कौन सी करी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। नाउ लास्ट सीरीज कौन सी है आपकी, कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में सबसे पहला मेथड कौन सा है, इंस्पेक्शन मेथड। आपने इंडिविजुअल में भी कर लिया, आपने डिस्क्रीट में भी कर लिया, नाउ यू आर गोइंग टू डू इन द कॉन्टिन्यूस सीरीज। आपको पता ही है कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल में दिया होगा, आपको एक्स दी होगी, आपको एफ दी होगी। इसमें मेथड डिफरेंट है। अब आपने इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपने इस बाकी सब में आपने क्या किया था, मीडियन में आपने सी एफ निकाला, मीन में आपने एफ एम किया, और आगे शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन में आपने डिफरेंट फॉर्मूला लगाया। पर इंस्पेक्शन मेथड में आपने एक्स और एफ दी होगी, आपने कोई सी एफ नहीं निकालनी, आपने सिर्फ एफ में देखना हाईएस्ट टर्म कौन सी है 15। आपने हाईएस्ट टर्म के ऊपर, आपने हाईएस्ट टर्म के आगे लिख देना F1, उसके ऊपर वाली टर्म के ऊपर क्या लिख देना आपने F0, उसके नीचे 15 के नीचे वाली टर्म के लिख देना F2। आई एम स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। 15 आपने हाईएस्ट टर्म देखनी कौन से F में, कौन से 15, उसके आगे आपने लिख देना F1, और 15 के ऊपर वाली F0 होगी, 15 के नीचे वाली आपकी क्या होगी F2। अब आपका फॉर्मूला क्या है, और 15 के बिल्कुल सामने वाला आपका क्या होगा L1, क्या होगा L1। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। नाउ L1 क्या आपका 10 है, F1 क्या आपका 15, F0 कितनी आपकी 4, और F2 कितनी आपकी 6। Now put this values in this formula, you will get the answer that is 12.75। बस इंस्पेक्शन मेथड में आपने क्या ध्यान रखना है, हाईएस्ट टर्म जो सबसे ज़्यादा बड़ी टर्म होगी उसके आगे आपने F1 लिख देना है, उसके ऊपर वाले को F0, उसके नीचे वाले को F2, और जो हाईएस्ट टर्म है 15 के सामने वाली आपका L1 होगा, और इसको फिर फॉर्मूला में आपने पुट कर देना है। और जो फॉर्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, 2F1 मतलब आपने 2 के साथ इसको F1 को मल्टीप्लाई करना है, इंटू आई क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, किस में है कॉमन डिफरेंस, x में से। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आपका 5। सो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला you will get the answer that is 12.75। Now we are going to start our second method, that is grouping method. Grouping method of continuous series. Now in the grouping method you are going to do same like with what you have done in a discrete series. Now we are going to make the two tables, that is grouping table and analyzing table. First of all we are going to make the grouping table. Which table we are going to make, grouping table. Like the discrete series आपको x दी होगी, आपको f दी होगी, आपने वैसे ही 6 कॉलम बना लेने हैं, कौन से 1 2 3 4 5 6। एफ को आपने फर्स्ट कॉलम ले लेना, एफ को आपने क्या ले लिया फर्स्ट कॉलम, उसके बाद आपने सेकंड 2 3 4 5 6 कॉलम बना लेने। अब फर्स्ट कॉलम में तो आपकी एफ है, सेकंड कॉलम में आपने क्या करना है 1 + 2, थर्ड कॉलम में क्या करना है 2 + 3, फोर्थ कॉलम में क्या करना है 1 + 2 + 3, फिफ्थ कॉलम में क्या करना है 2 + 3 + 4, सिक्स कॉलम में क्या करना है 3 + 4 + 5। आपने ये सारा प्लस किस में देखना है, आपने एफ में देखना है, किस में देखना है आपने एफ में। आई एम गोइंग टू डू इन द फर्स्ट कॉलम यू आर आपकी हाईएस्ट टर्म कौन सी है आपकी 25, तो आपने 25 को क्या कर लिया सर्कल कर लिया। अब सेकंड कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, आप बनाएंगे कैसे बनाएंगे 1 + 2, 1 + 2 आपने किस में से देखना है एफ में से। 1 + 2 कैसे 4 + 10, 25 + 15, 23 + 22, 12 + 3।
आपने इन सबको प्लस कर लेना है और हाईएस्ट टर्म को आपने सर्कल कर लेना है। इसी तरह आपने 2+3 कर लेना है, 1+2+3, 2+3+4, 3+4+5, 3+4+5, ये सारे प्लस आपने किस में करने हैं, एफ में। करने के बाद आपने सबकी हाईएस्ट टर्म को क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। आफ्टर सर्कल करने के बाद आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट, यू आर गोइंग टू मेक दैट इज analyze table. Which table you are going to make which table you are going to make, that is analyze table. एनालाइज टेबल में आपने कॉलम बना लेने हैं 6, क्योंकि आपने ऊपर भी 6 कॉलम बनाए हैं, और नीचे क्या लिखोगे आप, टोटल। और इस साइड पे आपने क्या लिख देनी है, एक्स लिख देनी है। आपने क्या हॉरिजेंटल आपने क्या लिख देनी है, आपने एक्स लिख देनी है। अब एक्स आपकी क्लास इंटरवल में आपने ऐसे ही आपने एक्स लिख देनी है। अब आपने फर्स्ट कॉलम में देखना है हाईएस्ट टर्म कौन सी है, हाईएस्ट टर्म कौन सी है आपकी एक्स में, 25। आपने 25 को देखो कि किस क्लास इंटरवल में आ रही है, 30 to 40, तो आपने 30 to 40 में सर्कल कर दिया। इन द सेकेंड कॉलम आप 23 + 22 प्लस कितने, 23 + 22 कितना आ रहा है, 45। अब 23 + 22 आप एफ में देखो किसके सामने आ रहा है, एक्स। 50 और 60, 60 और 70, 50 और 60 एंड 60 एंड 70 आपने टिक कर देना। आपने इसी तरह सारा एनालाइज टेबल बना के आपने क्या कर देना है, टोटल कर देना। अब टोटल करने के बाद इस फर्स्ट 2 कॉलम में कुछ नहीं है, हाईएस्ट देखना आपने किस में आ रहा है, हाईएस्ट किस में आ रहा है, टिक आ रहा है 5 के ऊपर क्या है आपका 50 और 60, क्या आ रहा है आपका हाईएस्ट। फिफ्थ में क्या, फिफ्थ आ रही है कौन सी क्लास इंटरवल, 50 एंड 60। इन द डिस्क्रीट सीरीज आपने सिर्फ ग्रुपिंग एंड एनालाइज टेबल के बाद आपका आंसर आ गया था, बट इन द कॉन्टिन्यूस सीरीज आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, जो आपने इंस्पेक्शन मेथड में अप्लाई किया था। डिस्क्रीट सीरीज में कोई मेथड नहीं अप्लाई करना होता एनालाइज टेबल के बाद, बट कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा, L1 + F1 - F0 to F1 - F0 - F2 × I। अब आपने ये फॉर्मूला कैसे, कहाँ पे फाइंड आउट करना है, आपका हाईएस्ट टर्म कौन सा आया आपका 5 के सामने क्या है आपका 50 एंड 60। अब 5, 50 एंड 60 देखो आप, ये रहा 50 एंड 60। आपने 50 एंड 60 के ऊपर आपने क्या लगा देना है, यहाँ पे F1, आपने यहाँ पे इसके आगे क्या लिख देना है F1, इसके ऊपर आपने लिख देना है F0, और इसके नीचे आपने क्या लिख देना है F2। ओके, नाउ अवर L1 कितना आपके आ गया 50, F1 कितना आ गया आपका 23, F0 कितना आ गया आपका 15, F2 कितना आ गया आपका 22, और I कितना आपका 10। आफ्टर and now you get the value, now put this value in this formula, your answer is 58.89. So student, pay attention over here. In the grouping method you are going to do 3 things. Which one? First you are going to make the grouping table, second is analyze table, and then you are going to put the formula. और फॉर्मूला आपने किस में देखना है, तो किससे पता चलेगा आपको, एनालाइज टेबल। जो हाईएस्ट टर्म आई है उसके सामने आपने एक्स देख लेना है, एक्स के आगे आपका वो L1 आ जाएगा, उसके सामने वाली आपकी हाईएस्ट F1 आ जाएगा, फिर F0 और F2। आप देन यू गेट योर आंसर, दैट इज 58.89. So student, after completing our series, integer series, discrete series and continuous series, now we are going to do our next, that is less than. आपने मीन में भी कर लिया, मीडियन में भी कर लिया, सेम प्रोसीजर आपने मोड में करना है। आपको एक्स दी होगी <5, 10, 15, 20, आपने उसको एक्स में कन्वर्ट कर लेना है। और लेस देन में आपको हमेशा क्या दी होगी, सी एफ दी होगी आपको। आपने सी एफ से क्या निकाल देनी, एफ। आप सी एफ से एफ कैसे निकालते हो, फर्स्ट टर्म रिमेन द सेम, देन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या करते हो आप, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आपने सी एफ से एफ कैसे निकालनी, फर्स्ट टर्म रिमेन द सेम, देन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब आपकी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आ गई अब यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या, अगर तो आपको दो इसमें हाईएस्ट टर्म 2 रिपीट करनी है, जैसे 10 10 हमारे पास 2 बार रिपीट कर रहा है, आपने यही देखना, आपने सी एफ तो निकालना नहीं है, आपने एफ में से हाईएस्ट वैल्यू देखनी है।
अब f में अगर दो वैल्यूज़ रिपीट कर रही हैं तो आपने हमेशा कौन सा मेथड लगाना है, ग्रुपिंग मेथड। कौन सा मेथड लगाना है, ग्रुपिंग मेथड। अगर दो टर्म रिपीट करेगी कौन सा मेथड लगाओगे, ग्रुपिंग मेथड। अगर एक ही टर्म रिपीट कर रही है तो आपने या तो ग्रुपिंग मेथड लगा सकते हो या कौन सा मेथड लगा सकते हो, इंस्पेक्शन मेथड। ये आपके ऊपर है। सो पे अटेंशन हेयर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखना है, अगर हाईएस्ट टर्म दो रिपीट कर रही है तो आपने कौन सा मेथड लगाना है, हमेशा ग्रुपिंग मेथड। अगर हाईएस्ट टर्म एक ही है तो आप इंस्पेक्शन मेथड भी लगा सकते हो और ग्रुपिंग मेथड भी लगा सकते हो। बट पेपर में अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया है तो आपने हमेशा कौन सा मेथड लगाना है, इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड कब लगाओगे, जब एक ही बार रिपीट कर रही है टर्म। अगर दो बार रिपीट कर रही है फिर 4 मार्क्स में आप ग्रुपिंग मेथड ही लगाओगे। अगर इफ़ द क्वेश्चन कम इन 6 मार्क्स तो आपने कौन सा मेथड लगाना है, ग्रुपिंग मेथड। कौन सा मेथड लगाओगे, ग्रुपिंग मेथड। 6 मार्क्स में आपने इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगाना जब तक एग्जामिनर आपसे कहता नहीं है। अगर एग्जामिनर ने साइलेंट क्वेश्चन दिया है तो आप 6 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ग्रुपिंग मेथड। grouping method. I am going to repeat it again now if अगर आपकी f में जो हाईएस्ट टर्म है अगर दो बार रिपीट कर रही है, तो आपने कौन सा मेथड लगाना है, ग्रुपिंग मेथड। अगर एक ही बार टर्म रिपीट कर रही है तो आप ग्रुपिंग भी लगा सकते हो और इंस्पेक्शन मेथड भी लगा सकते हो। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, अगर वो टर्म एक ही बार रिपीट कर रही है तो कौन सा मेथड लगाओगे, इंस्पेक्शन मेथड। अगर वो क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो आपने कौन सा मेथड लगाना है, ग्रुपिंग मेथड। अगर एग्जामिनर ने कहा है तो इंस्पेक्शन मेथड लगाना है, वरना आपने कौन सा लगाना है, ग्रुपिंग मेथड। सो इन द लेस देन आपने क्या करना है, अब इसमें आपको दो टर्म रिपीट कर रही है तो आपने सीधा वैसे ही ग्रुपिंग टेबल बनाओगे, फिर एनालाइज टेबल बनाओगे, फिर आप फॉर्मूला पुट करोगे। बाकी सारा कुछ सेम है। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन नाउ। एक्स दी होगी आपको, आपने एक्स को क्लास इंटरवल बना लेना है, फिर सी एफ से आपने एफ लगा लेना है, एफ निकाल लेना है। अब आपने देखना है दो बार टर्म रिपीट हो रही है, इसका मतलब कौन सा टेबल बनेगा, ये ग्रुपिंग टेबल बनेगा। ग्रुपिंग टेबल बनाओगे, फिर ग्रुपिंग के बाद एनालाइज टेबल बनाओगे, एनालाइज टेबल के बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला आपने सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज में ही अप्लाई करना है, जब क्लास इंटरवल्स आ गई तभी आपने वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, वरना आपने फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। डिस्क्रीट सीरीज में सिर्फ दो ही टेबल है, कोई फॉर्मूला नहीं है। बट कॉन्टिन्यूस सीरीज में टेबल भी है, एनालाइज टेबल, दो टेबल है और एक फॉर्मूला है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर देन। विच क्वेश्चन, मोर देन। आपको x दी हुई है, आपने उस मोर देन 100 दी हुई है आपको x, आपने उसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर ली। क्लास इंटरवल करने के बाद आपको क्या दी होती है, CF। आपने CF से निकाल लेनी है f। आपने CF से कैसे f निकाली, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। क्या करा आपने, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, आपका क्या आ गया, f आ जाएगा। नाउ सेम प्रोसीजर। अब देखो आपके पास f में एक ही वैल्यू आ रही है हाईएस्ट, कौन सी, 19। कौन सी आ रही है, 19। आपने 19 के आगे क्या लिख देना है, F1, उसके ऊपर F0, नीचे के लिख दोगे F2 और ये आपका क्या आ जाएगा, L1। नाउ अप्लाई एनी मेथड। अब आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, इंस्पेक्शन मेथड भी और ग्रुपिंग मेथड में। बस आपने मार्क्स देख लेने कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, और एग्जामिनर ने पूछा तो नहीं हुआ कोई टेबल, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड मेंशन तो नहीं है। अगर तो नहीं किया तो आप कोई भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई किया है। इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करने के बाद आप ये उसका फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ इन दिस फॉर्मूला आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपने ऊपर चेंज करना है, बाकी प्रोसीजर सारा सेम है। ऊपर आपने क्या चेंज किया, CF को आपने F में कन्वर्ट कर लिया। बस ये चेक करना है कि कोई वैल्यू जो हाईएस्ट टर्म है दो बार रिपीट तो नहीं हो रही है। अगर एक बार रिपीट हो रही है तो कोई भी मेथड लगा सकते हो, इंस्पेक्शन एंड ग्रुपिंग। अगर 19 दो बार रिपीट होता है तो कौन सा मेथड लगता है, हमेशा ग्रुपिंग मेथड। नेक्स्ट इज मिड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिड वैल्यू। सेम मिड वैल्यू इज गिवन टू यू। आपने मिड वैल्यू से x निकालना, आपने मिड वैल्यू से क्या निकालना है, x। आपने मीडियन में किया था, मीडियन में क्या किया था, आपने कॉमन डिफरेंस देख लेना है। कॉमन डिफरेंस कितने का है इसमें, 10 का। कितने का क्या कॉमन डिफरेंस, 10 का। आपने 10 को किससे डिवाइड करना है, हमेशा 2 के साथ।
कितना आंसर आ गया आपका 5, कितना आंसर आ गया 5। अब आपने मिड वैल्यू फर्स्ट में देखो क्या है आपका 5, आपने 5 इधर माइनस करना, 5 इधर प्लस करना, तो क्या आ गया आपके 0 to 10। नेक्स्ट क्या है तुम्हारी 15, आप 15 में से 5 माइनस किए, 15 में से 5 प्लस किए, क्या बन गया 10 to 20। अब आपने इसी तरह अपनी क्लास इंटरवल बना लेनी है। क्लास इंटरवल बनाने के बाद आपने क्या, आपको तो एफ दी होगी, आपने एफ में से सिर्फ देख लेना हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है आपकी, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 71। 71 के सामने देखो और 71 के ऊपर वाला कौन सा F0, 71 के नीचे क्या है आपका 71 के ऊपर क्या है आपका 31 दैट इज़ F0, और 71 के नीचे क्या है आपका 52 दैट इज़ F2। नाउ यू कैन अप्लाई एनी मेथड, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। यू हैव टू चेक ओनली द मार्क्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। Now that is next question is unequal class interval। unequal class interval में आपको पता ही है जो x ही होती है उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता है, सही नहीं होता, वो का मतलब इनप्रॉपर होता है। किसी में 10 का डिफरेंस, किसी में 20 का डिफरेंस, किसी में 30 का डिफरेंस। आपको f दी होगी, x तो दी हुई है बट वो अनइक्वल है, f दी होगी, आपने उस अनइक्वल को मोड में x को इक्वल में करना है। अब आप देख लो अगर ये अब ज़्यादा डिफरेंस किसका आ रहा है कॉमन, 10 का, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का, इसमें 20 का, 10 का, फिर 20 का, फिर 10 का। इसका मतलब हम क्लास इंटरवल्स को 10 में ब्रेक कर सकते हैं। आपने किस में ब्रेक कर देना, 10 में। मैंने 10 में ब्रेक कर लिया, 0 to 10, 10 में ब्रेक मीन 10 का डिफरेंस लेके, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, मैंने सारी 10 में ब्रेक डिफरेंस कर लिया। उसके बाद जिसके आगे तो 10 का डिफरेंस है उसकी एफ़ तो सेम रहेगी। जब जिसमें 20 का डिफरेंस आ जाएगा, जैसे 20 और 40, तो आपने क्या कर देना है, इसको 2 के साथ, 20 है तो इसको 2 के साथ क्या कर दोगे आप, ब्रेक कर दोगे। आपने 2 क्लास इंटरवल में ब्रेक किया तो 40 को कितने में कर लोगे आप, 2 में। तो आपका कितना आ जाएगा 20 to 30 20, 30 to 40 कितना आ गया आपका 20। नेक्स्ट 35 भी सेम रहेगा। अब नाउ फिर 50 to 70 है, 50 to 70 में आपने 2 में ब्रेक करना, मतलब 50 to 60, 60 to 70, मतलब 42 को अब 2 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 21। तो आपने 50 to 60 के आगे भी 21 लिख लेना, 60 to 70 पे आगे क्या लिख देना है 21। अब आपने क्या करना है, एफ़ में हाईएस्ट टर्म देखो कौन सी है 35, 35 के आगे F1, फिर F0, F2 और L1। फिर आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। बस स्टूडेंट्स इसमें यह ध्यान रखना, अनइक्वल क्लास इंटरवल में मीडियन में तो आपकी जहाँ पे वैल्यू लाई करती थी आपने उसी का डिफरेंस देखा था, बट मोड में आपको देखना पड़ेगा कि ज़्यादा डिफरेंस कौन सा, ज़्यादा डिफरेंस कॉमन आ रहा है। जैसे 10 ज़्यादा आ रहे थे, 10 ज़्यादा आ रहे थे तो मैंने पूरी x को 10 में ब्रेक कर लिया, 10 के डिफरेंस में ब्रेक कर लिया। अब जिनके आगे तो 10 है उसकी एफ तो सेम रहेगी, जिसके आगे 20 आ जाता है तो उसको आपने 2 क्लास इंटरवल में ब्रेक करोगे तो 2 के साथ डिवाइड करोगे, 3 के साथ ब्रेक करोगे तो आपको 3 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। बाकी आपका सम सारा सेम ही, आप अपनी मर्जी से ग्रुपिंग और इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते हो। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल आपने जैसे मीडियन में किया था आपने वैसे ही करना है। 10 to 19 दिया हुआ है, आपने वन साइड क्या करना है 0.5 इधर क्या करोगे आप माइनस करोगे, 0.5 क्या करोगे यहाँ पे आप माइनस, और इधरली साइड पे क्या करोगे 0.5 क्या करोगे आप प्लस। आपने ऐसी अपनी एक्स बना लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 to 19 है, इधर 0.5 माइनस किया 9.5 आ गया, इधर किया प्लस किया तो क्या आ गया आपका 20.5, क्या आ गया आपका 19.5, 19.5। आपके पास f दी हुई है, आपको क्या क्या दी हुई है f दी होगी। आपने इसी तरह x में 0.5 इधर माइनस 0.5 इधर प्लस करने के बाद f में से देख लेना हाईएस्ट टर्म कौन सी है 40, 40 के सामने f1, उसके ऊपर f0, उसके नीचे f2। फिर आपने कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कौन सा, कोई भी इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग। बस इंक्लूसिव सीरीज़ में आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है 0.5 माइनस 0.5 प्लस, one side 0.5 minus, one side 0.5 plus. Now our next sum is open end
सीरीज़, ओपन एंड सीरीज़ में आपने कुछ नहीं करना, कोई कन्वर्जन नहीं है, सीधा ही आपने कोई भी मेथड लगा सकते हो, या कोई भी मेथड को, चाहे इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। और अब मैंने यहाँ पे कौन सा मेथड लगाया है, इंस्पेक्शन मेथड, आप कोई भी मेथड लगा लो, इंस्पेक्शन एंड ग्रुपिंग। Our last question of this chapter is, in this question you have आपको 3 मीन, मीडियन, मोड, 3 चीज़ों में से 2 की वैल्यू गिवन होगी, 1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। द फॉर्मूला क्या आपने लगाना, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में 3 चीज़ों में से आपको 2 चीज़ें दी होगी, आपको एक चीज़ फाइंड आउट करनी है। आपको मोड भी फाइंड आउट करने को आ सकता है, मीडियन भी फाइंड आउट करने को आ सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। सपोज इन दिस, फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, मोड की वैल्यू दी हुई है, आपको मीन की वैल्यू दी हुई है, आपने मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करना, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मोड की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, आपको मोड कैलकुलेट द मीडियन, आपने यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट द मीडियन, आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, मीडियन की वैल्यू निकालनी है। आपको मोड की वैल्यू दी हुई है 25, मीन की वैल्यू आपको दी हुई है 2, क्या दी हुई है 30, आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब आप 3 मीडियन को बाहर निकाल के आपका मीडियन की वैल्यू आ जाएगी, बट फॉर्मूला विल बी द सेम। फॉर्मूला क्या है आपका, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा। इसमें से जिसकी वैल्यू मिसिंग होगी आपने उसके वो बाहर रख के अपने आप अपनी वैल्यू निकाल लेनी है। इस क्वेश्चन में मोड और मीन दिया हुआ था, आपने मीडियन निकाल लिया, और किसी क्वेश्चन में मीन मिसिंग हो सकता है, आपको ये दोनों से आप मीन की वैल्यू निकाल सकते हो। In the end, our mode chapter is completed. In the mode chapter you have done इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में एक ही मेथड किया आपने, कौन सा, इंस्पेक्शन मेथड। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में 2 मेथड किए आपने, इंस्पेक्शन एंड ग्रुपिंग। कॉन्टिन्यूस में भी आपने 2 ही मेथड किए, इंस्पेक्शन एंड ग्रुपिंग। Then you have done the less than, more than, mid value, unequal, inclusive series and open end series. This is your and after doing this your mode chapter is finished. In this less than, more than, mid value, unequal, inclusive series, open end series, इन चीज़ों में स्टूडेंट्स आपने यही चीज़ ध्यान रखनी है, अगर एफ में कोई टर्म 2 बार रिपीट कर रही है तो आपने ग्रुपिंग मेथड लगाना है। अगर वो टर्म एक ही बार ही हाईएस्ट टर्म रिपीट कर रही है, 1 टाइम अगर हाईएस्ट टर्म रिपीट करेगी तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, आइदर इंस्पेक्शन मेथड और अ ग्रुपिंग मेथड। बट आपने मार्क्स चेक कर लेना है कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में है। अगर तो एग्जामिनर ने मेंशन किया हुआ है तो आपने वही मेथड लगाना है। पेपर में अगर साइलेंट क्वेश्चन है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, पर वो मेथड आपने पहले मार्क्स चेक करने हैं कितने मार्क्स का है। अगर तो वो 4 मार्क्स का है तो आप इंस्पेक्शन मेथड लगाओगे, अगर वो ग्रुपिंग का है तो वो कितना, अगर 6 मार्क्स का है तो कौन सा लगाओगे, ग्रुपिंग। और डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में दोनों ग्रुपिंग टेबल में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है। डिस्क्रीट सीरीज़ में सिर्फ आप जब भी ग्रुपिंग मेथड लगाओगे तो आपने सिर्फ 2 ही टेबल बनाने, कौन से, ग्रुपिंग टेबल और एनालाइज टेबल। बट कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में आपने क्या करना है, ग्रुपिंग टेबल भी लगाना है, एनालाइज टेबल भी लगाना है, और आपने फॉर्मूला भी अप्लाई करना है। आफ्टर दिस योर चैप्टर 10th is finished. In this chapter we have covered the median and mode. In the next video we are going to start our new chapter.